जहाँ नहीं समझ आएगा हम बीच बीच जो वर्ड समझ आते जा रहे हैं लिखते जाएं, जो भी, चाहे थैंक्स, सॉरी, XYZ, जो भी। हम देखना चाह रहे हैं कि आपकी लिसनिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अब ये कैसे देखेंगे आपने? एक मिनट, अब ठीक है, अब चलाएं। थोड़ा घट कर आवाज। ये वाला चला। आवाज कर, आवाज कर, घट कर, घट। Good. Hold on. What is it? What has he said? No. No. Repeat it again. ये जुमला मीन आउट करें, गौर से सुनिएगा इस जुमले को जी। एक्चुअली क्या होता है, आप देखें, यही मसला है। जब कोई बंदा आइल्स और टॉफिल करने जाएगा, उसको जब सवालात मिल रहे हैं तो भी एक जनरल स्पीकर होता है जिससे वो सवालात अटैम्प्ट करते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं जितनी क्लैरिटी हो सके, लेकिन ये होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोशिश करते हैं इसको जी। पिज़्ज़ा समझ आया? और फ्रोजन भी समझ आया? दो। एक और बार प्ले कर लें। I just invented frozen pizza, क्योंकि एकदम से बर्फ आकर गिरी उस पर, तो ये कह रहा है I just। अब दोबारा चलाएं जरा, अब देखिए। एक्चुअली क्या है कि होल्ड ऑन, हम अंग्रेज़ी से कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेते। हम चाहते हैं बस हम अंग्रेज़ी बोलते रहें, इसमें कोई चार्म नहीं है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ये वेरिएशन के साथ अंग्रेज़ी है जिसमें साउंड अप एंड डाउन हो रहा है, जिसमें मल्टीपल लोग बात कर रहे हैं, किसी की वॉइस डिफरेंट है, किसी की वॉइस डिफरेंट है, कोई फीमेल वॉइस की तरह लग रही है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी वॉइस है, तो उसमें आप लोगों को इरिटेशन हो रही है और आप सुनना पसंद नहीं करते, आप सिर्फ बोलना पसंद करते हैं। तो दैट वंस यू आर लिसनिंग, जब आप लिसनिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रबल ये हो रहा है कि व्हेन ही इज सेइंग आई जस्ट हैव इन्वेंटेड पिज़्ज़ा, सो यू आर नॉट कैचिंग आउट दैट वेदर द वर्ड इज invented or what,
आपको अभी अगर यूं कहें, जैसे मैं सिंपली कहूँ आई जस्ट इन्वेंटेड पिज़्ज़ा, तो फिर आपको समझ आया। अब ये इसको मैं इसको फिर बिल्कुल स्लो में लेकर आऊँ तब जाकर समझे ना, तो अब ये तो हो ही नहीं सकता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अब देखिए आपको फ्रोजन समझ आ रहा था, पिज़्ज़ा समझ आ रहा था, लेकिन इन्वेंटेड नहीं समझ आ रहा था। वो इसलिए नहीं समझ आ रहा था, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द वर्ड। सो नाउ अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू few more words, then I'll just give a pause and then I'll ask you. Got that? Okay. साउंड बढ़ाएं। This word, whoa, it means to say, have you used ever this word? No, sir. Why not? Because you do not speak informally. आप दोस्तों के साथ भी मजाक करते होंगे उर्दू सिंधी में, but you never use these words in English. Like, if somebody is trying to stop somebody, so he is just trying to hold it. Whoa. It means just hold on. Is it? Like if somebody is asking me the same question that, are you getting this? I said, it means no. If I'm saying, it means yes. Why should I say yes? If I'm busy, if I'm engaged somewhere, I don't want to say yes or no. I want to talk informally. So these words are for me, for you people. Why don't you use informal language while speaking English language? This is the charm of the language. Like somebody is coming so fast, hold on, you can do this, or you are saying, whoa, like that. You have just stopped somebody. So these sounds can help you to speak in English informally. And you friends usually speak informally, not formally. Is it getting? Are you getting my point? Like, for instance, two friends are speaking. One buddy is quite shy, or he doesn't like to speak more. But one person is a chatterbox. He or she speaks a lot. So if I'm frustrated, if I'm irritated by his words or by her words, so they just stop, blah blah blah. You're speaking much. Like this sign is a body language. This shows that you are irritating me. Same with my language. Like I said, you are doing blah blah blah, and this irritates me. What is it? This is informal, but I need to convey my message. Should I say, respected friend, please do not do this? Should I say this? No way. When somebody is my friend, he is very close to me, I can speak like that. Is it change? Is it difficult? Is it different? Bit different. But we have not utilized such kind of language. So I mean to say this. This movie means you need to catch some words. Use in your language. Use in your daily routine. Even day before yesterday, or 2 or 3 days before, one of my friends said, you have forgotten your accent. You are using bit Sindhi accent. I said, okay, it may be that I'm just occurring. It occurs that I'm using Sindhi accent. Even I didn't show that because of class I'm using this. Now this doesn't allow me to use easy accent.
So I'm not using easy accent. I'm trying to go with that. Try to learn by the surroundings and environment. Like if somebody is asking you a question and you are surprised by that question, so what can be asked for questions, or what can be used for a question, as well as what can be used for surprise. Like if somebody says that you are duffer, what? That should be my reaction, is it? Or that should not be my reaction. What? Which should be my reaction? My reaction should be the surprising one. Is it or not? Or should I react like what? Never. What? This should be my. So language can be communicated through body language and sound, both. You may use sound, but you do not use body language. Facial expressions they are using. Look at their faces, look at their body language. आपको ये पता है इनके पीछे भी कोई ट्रांसलेटर, कोई ट्रांसक्रिप्टर होगा जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा होगा, जो बोल रहा है. Why don't you enjoy language? They are enjoying. Is it or not? I want you people. इसके बाद मैं चाहूँगा कि कोई मुझे इसमें एक करेक्टर है क्लम्सी का, गौर कीजिएगा इसमें क्लम्सी का. मुझे इस क्लम्सी स्मर्फ की तरह कोई बोल कर दिखाए. This would be the Herculean task कि इस तरह से जब ये बोल सकते हैं, why don't we? Is that? So just focus on clumsy Smurf. Whoa, slow your roll, Sailor. You're not the list. It's right there. Right, like right. It means it is quite satisfactory voice. Is it? That is the variation of sound. That is the variation of sound. Sound goes up, sound goes down. Why don't we use, for instance, I need to speak a bit loud, I need to speak a bit loud. For instance, I have to speak down, then I should speak down. I need to control my voice when I'm speaking English. This is called language. This is called communication. If you do not have command over voice, if you have just fluctuation in your voice, then you cannot be the good speaker. If you want to be the good speaker, try to have variation in your sound. Is it? You like verbal skills required. Wait, here we go. You see, you're the first one I can. You're what politely called fractures. How can anybody think that? How can anybody think that? Think that. We usually say that. Think. Repeat it. Anybody think that? Think that. Is it? Oops, that's gonna leave a big bruise. Wonderful! Beautiful! Drop! It's a drop! No story now. The word is life. Alright, don't get your bed. As happy and as perfect as life in Smurf villages, even sunshine and butterflies must have their dark clouds. And for all Smurfs, that dark cloud has one name: Gargamel. Repeat. Have you focused? That dark cloud has. What is he saying? Red dark cloud. Red dark cloud. There is one red dark cloud. That is Gargamel. He is saying there is one red dark cloud. What do you mean by one red dark cloud? Sign of danger. There is a dangerous one. There is someone who creates a hurdle, who is dangerous for us. So, red
dark cloud. This is an addition in your vocabulary. Is it? Continue. One name, God and evil. पीछे और थोड़ा पीछे करें. जब ये जुमला और पीछे और That dark cloud और has पीछे one name. थोड़ा सा पीछे तक और पीछे और पीछे. All Smurfs. That dark cloud has one name. But After all, English. God and evil wizard. What do you mean by wizard? जादूगर. An evil wizard. What false word? I look at a small group of blue people live in the forest with 99 sons and one daughter. Nothing weird about that, no. Totally no. But all of that is about to change. I said all of that is about to change. I see it, I told you. That's what food that counts under this body. Some kind of a blinky blue feline friend. He's the only purpose I have. I am not obsessed with smell, thank you. This is the only puppet that I have. Is it? How can you use this structure in your daily routine? Give me pencil. Pencil पर बना कर दें. This is the only pencil that I have to write. लिखने के लिए एक ही पेंसिल है. Is it? So the structures, again the structures. कोशिश करें इनको सुने, समझें और अपने पास सेव करते जाएं. What I need there is only my capturing the little wretches and extracting that. That is the finally invincible, yes. The most powerful wizard God of the world. Very bad last idea. Oh, you see, I have a magical special gift that began to smell the clothes. Now use my formidable powers to magically transport us here. Now, my yeah, boy. That's Your long time here. I'm the Smurfs of magic. Summon a vision. See what I Summon a vision. What do we mean by summon a vision? दोबारा प्ले करें इसको ज़रा. I'm the Smurfs of magic. Summon a vision. See what I do. समन कहते हैं, समन कोर्ट के बुलावे को भी कहते हैं, बुलावा आना, बुलावा आना. वो कह रहा है समन अ विजन सो दैट आई कैन सी फ्यूचर. किसी चीज़ को बुलाना, किसी चीज़ को कॉल करना. विजन कहते हैं दिखाना यानी शो होना. अब वो कह रहा है बुलावा देखना यानी कोई चीज़ लेकर देखना. तो इट मीन्स टू से ही वांटेड टू सी द फ्यूचर, सो ही इज सेइंग समन अ विजन. समन अ विजन मतलब ये है कि लेकर आओ एक झलकी,
लेकर आओ एक झलकी, किस चीज़ की? फ्यूचर की। सो लेट्स सी दैट, कंटिन्यू करें। So far, so good. Lots of smiles and circles. Somebody sitting still. That's only strong. I know. Yes. Fine. Why aren't you rehearsing for the movie? ओके, होल्ड ऑन। ये यस, आई एम फाइन। ये हिचकिचाहट साउंड में, वॉइस में, इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर स्कैरी, व्हेन यू आर वरीड, इज इट? आई वॉन्ट यू पीपल टू स्पीक लाइक दैट। सो इस मूवी दिखाने का मेन मकसद ये है कि हम शायद आपकी क्लास में कुछ डायलॉग परफॉर्मेंसेस रखें जिस पर आप लोग परफॉर्म करें। हम कोई 2 कैरेक्टर्स चलाएं, उनको साउंड आप दें, लाइक कॉन्वर्सेशंस हो 2 लोगों के बीच, 2 डायलॉग्स के बीच, यू हैव टू गिव साउंड, इज इट? तो फिर हम देखें कि आपका साउंड की बॉडी लैंग्वेज से मैच हो रहा है या नहीं। उसके लिए प्री प्लान हम आप लोगों को टाइम देंगे। सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर वॉइस विद सच कैरेक्टर्स, इज इट? Papa, you're smart as smart. I don't think so. No, those fields are too close to Gargamel Castle. I'll get the start. You stay in the road and out in front, understand? Visions. They can't let this happen to these fires. Just stay in the village, look at all this murder. I'm so proud of you. That's it. He sent catch and then said, Azriel, are you dead? So you want to confirm that if that cat is alive or dead. So English movies are not so difficult. Definitely you cannot translate or transcribe all the movie or all the dialogues, but slowly and gradually you can understand the dialogues, slowly and gradually. These animated movies can help you to learn regarding structures, vocabulary and sound, variations in sound. Is that clear? Continue. Nothing. Everything's going to be just fine. Perfect. And nothing you don't have to worry about that mean old Gargamel. I know she meant to nice. No, Gargamel! Oh, I got so much silly life in the village. Get back!
Okay, that's it. Okay, cause time is too short, and today just I have played short film, or due to shortage of time, we just played 5 minutes or 10 minutes movie. In next class, we will definitely started working on writing skills as well listening skills. We will watch movies or presentations, dialogues, conversations, so that we can understand how to speak and how to speak with maturity, proper sound, accent. अब हमारे साथ ट्रबल क्या होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस, एक मिनट में आप लोग बैग पैक करना शुरू हो गए भाई, होल्ड ऑन। कुछ लोगों को हाई नोट्स पर बात करने की बहुत आदत होती है। जब वो प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात हो या प्रेजेंटेशन की बात हो तो हाई नोट्स पर प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं अब देखिएगा, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल, अब वो इस तरह से हाई नोट्स पर जा रहे होते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह the most merciful, the most beneficent. I would like to say thanks to my teacher, audience, XYZ, blah blah. Okay. कुछ लोग स्टार्ट ही लो नोट्स पर करते हैं, जैसे in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Thank you, sir, and dear audience. अस्सलाम वालेकुम, like this. अब ये दोनों मोनोटोनियस हो गई, एक ही साउंड हो गया, वो वाला भी ये वाला भी। उसूल ये होना चाहिए कि अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, आप समझते हैं आपकी वॉइस रीच नहीं कर रही है, तो आपने एक मॉडरेट वे अडॉप्ट करना है। जैसे कि आपने स्टार्ट किया, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट, रिस्पेक्टेबल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। अब डाउन पर आ रहे हैं। टुडे आई हैव बीन असाइन अ टॉपिक, कल्चर, टेररिज्म, पॉवर्टी, लाइक कोई भी टॉपिक आप उठा लें। As it is said that poverty is a big curse since earlier. Respectable teacher and my dear fellow. अब देखें साउंड आराम से, जो जुमला है वो लोगों को समझ आना चाहिए। हमारी स्पीड जो होती है वो मॉडरेट नहीं होती है। हमारी स्पीड क्योंकि हमने रट्टा लगाया हुआ होता है, तो आपने गैप्स, नोट्स पर गैप रखने होते हैं, यानी उसको फुल स्टॉप लगाने होते हैं कि यहाँ मैंने रुकना है, मैंने बात ख़त्म कर रुकना है। लेकिन हम रुकते नहीं हैं, हम करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशियल। आई विल लाइक टू से थैंक्स टू माय टीचर एंड डियर ऑडियंस। टुडेज माय टॉपिक इज़ पावर। अब कितना बंदा बोलेगा एक सांस में? डेफिनेटली वो सांस लेगा उसको परेशानी होगी। तो इतना जल्दी कर रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी में किसी ने ये नहीं कहा कि आपको वन गो में बोलना है। जिस तरह से आप अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बलोची जो भी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो आप एक मॉडरेट वे में और एक मीडियम पेस पर बोलते हैं। इसी तरह से आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। तो कोशिश किया करें कि आप उसमें सांस लें, ठहर कर बोलें। कोई आपको गोली नहीं मारने वाला। हम ये समझते हैं कि शायद मैंने अगर ठहर कर बोला तो लोग ये समझेंगे मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा उसको पता है कि यू आर अ गुड स्पीकर इफ़ यू आर स्पीकिंग इन अ मॉडरेट वे। आप ठहर करो और सही अंदाज में बग़ैर अल्फाज चबाए बोल रहे हैं, वरना स्पीडी मैनर में क्या करते हैं, आप रन ओवर करते हैं जुमलों को। और रन ओवर करने से क्या होता है, अल्फाज आप जैसे टेप चबा जाती है ना, वैसे आप वर्ड्स खा जाते हैं और उससे आपको बहुत नुकसान होता है। न सिर्फ आपको नुकसान होता है, लैंग्वेज का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं आप। तो कोशिश किया करें, इसकी रिहर्सल्स करें, घर जाकर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सैटरडे क्लास इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उसमें जो है वो कुछ टाइम स्पोकन को, कुछ टाइम राइटिंग स्किल्स को दिया जाए, ताकि दोनों काम बैलेंस हो सकें और आपको कुछ चीज़ें समझ भी आएँ। कोई सवाल, कोई बात पूछना चाह रहे हो, जो बात समझ ना आई हो इन क्लासेस के दौरान, या लैंग्वेज में कोई ट्रबल आ रहा हो, क्लासेस में कोई इशू हो, कोई मसला अगर आपको परेशान कर रहा हो लैंग्वेज सीखते वक्त, एवरीथिंग इज़ ओके। हैरत की बात है, हमें पूरे महीने में मतलब कोई मसला नहीं आता, हफ्ते पूरे में। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। यू नेवर आस्क क्वेश्चंस। इवन कभी कोई सवाल आप लोगों की तरफ से नहीं आता कि सर यहाँ मसला हो रहा है, यूँ समझ नहीं आ रही। जब तक आप
अपने अंदर से ये शायनेस ख़त्म नहीं करेंगे, वी फील कि मैं सवाल करूँगा तो लोग कहेंगे ये डफ़र है, शायद ये सवाल कर रहा है, बट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सीखना चाहता है वो पूछता है कि सर ये नहीं समझ आ रहा, हाँ मीनिंगफुल क्वेश्चन हो, मीनिंगलेस ना हो। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, आपको अगर कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट क्लास ये देखें, गुड और बैड जो होता है वो डिसाइड आप खुद कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम साउंड्स को कॉपी करते हैं, जैसे कि इसको हम कॉपी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा थिंक, द वर्ड इज़ थिंक, हम पढ़ते हैं थिंक। अगर आप किसी कमेंटेटर को सुनते हैं और वो कमेंटेटर अंग्रेज़ी का ही है, उसकी नेटिव ज़बान अंग्रेज़ी है, तो बहुत अच्छा है। अगर वो फ्रांसीसी है, फ्रेंच बोलने वाला है, तो वो अंग्रेज़ी ऐसे ही बोलेगा जैसे हमारे पास पठान उर्दू बोलता है। कहीं ना कहीं उसके वर्ड्स में चेंज होगा, कहीं ना कहीं उसके एक्सेंट में फ़र्क होगा, जो आपको महसूस हो जाएगा। हमें नेटिव लोगों से अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, जो बरतानिया के रहने वाले हों, जिनकी अंग्रेज़ी बाय बर्थ वही ज़बान हो, तो फिर हम उनसे सीखें, ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर चले जाएं। वही मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे से इंशाल्लाह मैं 10-20 मिनट इस चीज़ के भी रखूँगा कि आपको साउंड कैसे ठीक करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग क्या करें, आप स्पीचेस कैसे सुने। आपको यही है ना, देखिए ना, मैंने आपको एक वे समझाया कि आप स्पीचेस स्टार्ट कैसे करें। अगर आप समझते हैं ऑडियंस ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सांस ले सकते हैं, कोई बंदा आपको कुछ नहीं कह सकता, आपने सिर्फ मॉडरेट वे अपनाना है। लाइक एज आई सेड, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट, respectable teachers and my dear fellows, assalamu alaikum, like that. This is somehow first one, like good evening everybody and assalamu alaikum to all. Today I have been opportunity to be in front of you regarding this topic or XYZ job. आप घबराएं नहीं, वो घबराते आप इसलिए हैं कि आप समझते हैं कि मेरा रट्टा भूल जाएगा और मेरी लाइंस जो है मैं भूल जाऊंगा। आपकी लाइंस सिवाय आपके और उस्ताद के कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो समझेगा इसने स्ट्रक्चर तोड़ा है। बाकी लोग बिगिनर्स होते हैं, उनको ज़्यादा फील नहीं होता कि इसने स्ट्रक्चर को कहीं से तोड़ा है, या इसने किस्से को कहीं से ब्रेक किया है, या इसके साथ क्या मसला है, क्या है। लेकिन क्या है कि हम अच्छा उस वक्त कोई चीज़ कोशिश करें कि आप याद करने की कोशिश करते भी हैं तो नहीं याद होती, इसलिए कि आप अंडर प्रेशर होते हैं। अंडर प्रेशर कोई बंदा क्रिकेटर खेलेगा तो भी मुसीबत में, टीचर होगा लेक्चर देगा तो भी मुसीबत में, स्टूडेंट होगा प्रेजेंटेशन देगा तो भी मुसीबत में। अच्छा बुरा रिजल्ट्स जो है ना वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में परफॉर्मेंस। आप रिजल्ट्स पर ज़्यादा ना जाया करें, आप परफॉर्मेंस पर जाएं कि आई शुड डिलीवर माई बेस्ट। मुझसे लोग सवाल कर रहे होते हैं, जब मैं IB में पढ़ा रहा होता था तो हमारे यहाँ बुक रिव्यू कंपटीशन होता था, तो बुक रिव्यू में स्टूडेंट्स कहते थे हम क्या करें। मैं उनको हमेशा कहता था डू योर बेस्ट, समथिंग डिफरेंट। प्रेजेंटेशन के साथ साथ थोड़ा सा म्यूज़िक लगाएं, कुछ ऐसी चीज़ करें जो दूसरों से अलग हो। तो उन्होंने कहा सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने उनको कहा अगर जज ये समझ जाएगा कि ये इनोवेटिव आइडिया है, बहुत अच्छी बात है, या तो वो आपको टॉप पर रखेगा या बिल्कुल बॉटम में ले जाएगा, या टॉप पर रखेगा या बिल्कुल कहेगा इसको बॉटम में रखो, इसने ऐसा। क्योंकि हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, लीडर वही बनता है जो रस्म रवाजों को तोड़कर बाहर निकलता है, या तो दुनिया उसे बिल्कुल नीचे बॉटम में फेंक देती है, या दुनिया उसको सर पे खड़ा कर कहती है ही इज़ द बेस्ट लीडर। अगर आप अपने आप से मुतमईन नहीं होंगे, कोई भी आपसे मुतमईन नहीं है। आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। हिटलर कहता है मैं दुनिया का सबसे बुज़दिल तरीन आदमी हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी को रियलाइज़ नहीं करवाया। आई फील दैट आई एम द कावर्ड मैन ऑफ द अर्थ और इन द अर्थ, बट आई प्रिटेंड टू बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट मैन। कोशिश करता हूँ लोगों को ये बावर करवाऊँ कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ, लेकिन अगर कोई चिड़िया बराबर से छू के गुजर जाती है तो भी मैं घबरा जाता हूँ। और हिटलर वो शख्स है जिसकी
जिसके लिए मशहूर है कि दुनिया के कितने से बड़े लीडर आए, जब वो बैठा होता था तो उसके सामने सीधे खड़े होकर नहीं उसके ऑफिस आ सके, हमेशा लड़खड़ाए, यानी उसके चेहरे पर इतना रोब होता था। वो शख्स ये बात कर रहा है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में थोड़ा बहुत घबराता है, बट ये घबराहट चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। यू ऑलवेज हैव अ फेक स्माइल व्हेन योर आईज डायरेक्शंस एंड योर फेस डायरेक्शन इज़ नॉट सिमिलर। हम हंस तो रहे होते हैं लेकिन आंखें बता रही होती हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। फिर वो दूसरा बंदा समझ रहा होता है इट इज़ ए फेक स्माइल, बट दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। हर बंदा अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता है। फ्रेंचाइज वाले का क्या दिल करेगा कि एक सड़वे से बंदे को देखकर स्माइल करे, बट दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। सो गो थ्रू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द job. Your job is to present, so present in a marvelous way. अगर समझते हैं कि कहीं थोड़ा घबरा रहे हैं, so be confident और कोशिश करें कि इसको सही अंदाज में परफॉर्म करें। जहाँ टीचर्स की हेल्प चाहिए बिला झिझक उस्तादों से पूछ लें, दे विल बी हेल्पफुल। कोई ना नहीं करेगा, लेकिन मसला ये है कि मैंने हमेशा से कहा है पूछने का तरीक़ेकार दुरुस्त होना चाहिए, लिहाज अदब होना चाहिए। कोई उस्ताद ना नहीं करेगा। मैं हमेशा से लोगों को यही समझाता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस्तादों से पढ़ते होंगे, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा अदब में होते हैं, कुछ लोग थोड़ा मॉडरेट होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही माशाल्लाह होते हैं। माशाल्लाह का मतलब वो होता है कि वो हमेशा से ये फ़ील करवाते हैं कि शायद सर की एज क्या है, मैं उससे सर से 2 साल बड़ा हूँ तो सर मेरा अदब करें। वो हमेशा अपना अदब करवाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये तालीम या सीट पोजीशन जो होती है ये कभी भी उम्र से नहीं होती। आपके कई SSPs जो हैं बहुत यंग होते हैं, कई आपके जो सिपाही होते हैं वो एजड होते हैं। तो सिपाही कहे भाई उम्र से मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं क्यों सैल्यूट मारूँ, कि बाबा तुझे PG उम्र जा तो क्या सैल्यूट आना। यू आर पेइंग सैल्यूट टू द सीट, टू द जॉब डिस्क्रिप्शंस, वरना किस कमबख्त का दिल करेगा उसको सैल्यूट मारने का। मसला ये है कि हम सब अपने अपने, वो शेक्सपियर कहता है ना कि वी ऑल आर एक्टर्स, और हम सबको अपने अपने रोल्स मिले हुए हैं। अब उस रोल में खुश रहें जब तक हैं। जैसे आपका रोल चेंज हो जाएगा देन डेफिनेटली यू विल हैव अ नेक्स्ट पोजीशन, फिर उस पोजीशन पर आपका रोल डिफरेंट होगा। ये जो आपका रोल है शायद कल हमारा भी था, हमने उसको बड़ा हैप्पीली गुजारा, अच्छे अंदाज में गुजारा। अब ये आपके पास है, जब ये इस रोल से गुजर जाएंगे सो डेफिनेटली यू विल हैव अ पोजीशन। शायद किसी की पोजीशन कहीं कुछ होगी भी, लेकिन जब वो यहाँ आता है वो स्टूडेंट है, बस स्टूडेंट है, सीखे पढ़े और चला जाए। अपनी लाइफ को ओवरबर्डनाइज ना करें। ओवरबर्डनाइज का मतलब यहाँ पढ़ने आते हैं पढ़ें, यहाँ दुनिया भर की सोचें ना लेकर आएँ। सवालात करें जो बाज़-औक़ात, मैं आखिरी ये बात कर फिर ख़त्म करें। एडिसन क्लास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, कभी कभी हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स लग जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि हर वो पॉइंट समझना होता है जो उस्ताद लिख रहा है, और सभी स्टूडेंट ये नहीं चाहते। वो चाहते छोड़ो भाई कुछ नहीं समझ आया कुछ आया। हिकिड़ो चवंदो मां अॼु सब पैसा अॼु ही वसूल करे वञा। वो चाहता है मैं सारी चीज़ें सर से आज ही पूछ लूँ, वरना कल सर ने बीमार पड़ जाना है और ये फिर मेरे पैसे चले जाने हैं। हम उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कहते हैं। उस्ताद की नज़र में ये बेकार बंदा है, टाइम ख़राब कर रहा है। बाकी दूसरों का मैं क्या करूं भाई, तुम 50 सवाल पूछ लोगे, टाइम तो तू ज़ाया कंदे, ॿियनि खे मां छा पढ़ायां। यही एडिसन के साथ मसला था। जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया, उसकी माँ को ख़त मिला तो उसमें क्लियर लिखा था कि ये जो है वो तंग कर रहा है, इरिटेटिव स्टूडेंट है। जब उसने माँ से पूछा तो क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा लिखा है कि ये स्कूल छोटा है, इसको किसी शहर के बड़े स्कूल में भेजो। जब उसने उसको भेजा और उसकी माँ मर गई, वो ख़त उसकी संदूकची में पड़ा रहा। जब उसने अपनी माँ का सामान खोला तो देखा वो ख़त लिखा हुआ था, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि ये इरिटेटेड स्टूडेंट है, हमारे पास इसकी कोई जगह नहीं। वो कहता है अगर आई विश कि अगर मेरी माँ मुझे यही जुमला डिलीवर करती तो शायद मैं एडिसन ना होता।
मेरी माँ ने मुझे इनकरेज किया। तो इनकरेजमेंट इज़ नेसेसरी, बट इनकरेजमेंट तब होता है जब आप वैसी परफॉर्मेंस भी करें। कोशिश करें, अपने माँ बाप के पैसों को हलाल करें, अपने आप को उस दौड़ में शामिल करें जो दौड़ चल रही है। उस दौड़ का मतलब ये है कि कोई बंदा कहता है मैं उससे जेलस हूँ, जेलस ना है, बट टू बी इनवाइस पॉजिटिव वर्ड है। पोजीशंस लेने की कोशिश करें। अंग्रेज़ी कहीं भी पढ़ेंगे यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हम सैटरडे क्लास में मैं कोशिश करता हूँ हर सैटरडे के लिए सोचूं क्या नया हो, कोई नई चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको फ़ायदा दे। तो ये आप सोचें कि आपको कौन सा फ़ायदा है, आप हमें फ़ीडबैक दें, आप फेसबुक पर लिखें कि सर ये चीज़ें हमें सीखनी है, आप ये भी पढ़ाया करें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो उस्ताद आपकी हेल्प नहीं करता, जो सवाल समझ नहीं आता, आप यहाँ ले आएँ इन सैटरडे क्लास। आई नेवर से नो, मैंने किसी को ना नहीं कहा है। आप पूछें, आई विल गाइड यू। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसके तो कोई पैसे पे नहीं कर रहा ना भाई, हम सिर्फ पैसे लेने नहीं बैठे हैं, हमारा काम है आपको गाइड करना। ज़िंदगी में जब कोई अच्छा इंसान बन जाएगा तो उसकी ज़िंदगी का थोड़ा बहुत सवाब उस उस्ताद को मिल जाता है जो उसकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। सो वी वांटेड टू बी द कंट्रीब्यूटर्स, और टीचिंग इज़ ऑलवेज़ अ थैंकलेस जॉब। इसके लिए थैंक यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जॉब्स में हम लोग थैंक यूज़ वगैरह सुनते हैं ना, तो ये थैंकलेस जॉब होती है। आप अपना काम करें और लोगों को सपोर्ट करें, सिखाएं, और लोग सिर्फ ये समझें कि हमारा जो प्राइम काम है वो है प्रॉपरली लर्निंग करना, और वो आप अपना पूरी तरह से करें। जहाँ ना समझ आए बिला झिझक आप हाथ खड़ा करें, सर ये समझाएं ज़रा, आई विल एक्सप्लेन यू। इज़ दैट सैटरडे क्लास के लिए कुछ कोशिश किया करें, सवालात घर से जो सवालात पूरे हफ्ते के लिए जमा करें, जमा कर लिया करें। सवाल नाउन में ना समझ आए, प्रोनाउन में ना समझ आए, आर्टिकल ना समझ आए, एडजेक्टिव्स ना समझ आए, कोई और चीज़ है जो स्कूल कॉलेज में तंग कर रही है, इरिटेट कर रही है, वहाँ उस्ताद से नहीं पूछ सकते, यहाँ पूछ लें, विल हेल्प यू इंशाल्लाह। ठीक है जी। नाउ आई थिंक सो इट्स टाइम टू लीव द क्लास।